skills, to make you reach to the optimum level. So can I see some, response in the chat? You need to be very excited because you are going to learn something related to HTML. So it's such a great session which is going to be happening today. So I expect you guys to be very active, for learning something new. So it will definitely, of course, upskill and elevate you to greater heights, and to add a lot of potentiality to your existing knowledge, to make you reap maximum benefit out of this event as well. So, it is going to provide you with a platform to enhance, uplift, and upgrade yourself, and, to existing expertise, to elevate and evolve you to unparalleled heights and depths. And, Engineer Summit, is spread over 125 and above engineering colleges already, and it's such a vast community, to put up your skills and to guide others further. So we have some very extraordinary, reputed, and renowned mentors, who will be guiding you throughout the event as well. And Engineer Summit is a student community which encompasses all the student alumni from IITs and NITs, and also from some very reputed colleges. So it is such a great opportunity for all of us, to utilize and capitalize on this very opportunity given to all of us. So it will provide you all the valuable content, and the webinar links and everything which is related to the HTML session today. So, we are going to be having an absolutely fantastic session today, and everything is like absolutely free because, it's a service-oriented student community focusing on bringing the real talent, as I told, out to the globe. So, keeping all that in mind, it's doing a lot of service to the student community, and is also collaborated with so many reputed industry personalities, So, it's a great platform, for your guidance and support, to enhance your upskill, to the culmination of success as well. So it has already conducted so many events, webinars, covering all the fields and domains possible, like cybersecurity, boot camps, and webinars and whatnot, on AI and ML. Are you guys here, or what are you guys doing? Can I see some response? Come on in the chat. We are going to literally have such an amazing session on HTML. So I expect a little bit of, excitement, response in the chat as well, because we need to be hyperactive, be hungry to learn something. So we have our mentors join us today. That's great, Nandini. That's really great. You need to be hungry to learn something, and if you're sitting there, if you don't want learn something, sitting there cozy and drowsy, we can't be doing anything. So we need to be super excited. So I hope that all of you will be maintaining the same pace throughout the session. And as I told, that we have our mentors join us today, for this wonderful event today on the web development on the front end. So if you have any queries, you can feel free to ask in the Q&A round as well. And we have our mentors for this evening, Mr. Shivam sir, Mr. Anas sir, and also Mr. Satyam sir, and Mr. Shashank sir. So, let us all put our full focus, involvement, and, attention, and reap maximum benefit out of this event. And I hope that all of you will gain a lot of knowledge from this. And with that, I would like to hand over the platform to Mr. Anas sir. Over to you, sir. Oh, thank you. Good evening, everyone. Good evening, everyone. Hello. Yeah, you are audible. Okay. Shivam, can you please share? Just wait a second. Shivam is presenting a screen. Shivam, can you please present a slide for me? Yeah, just wait for a minute. I think Shivam is presenting. Okay, everyone, from now onwards, we'll start HTML. So just stay tuned. Okay, you can proceed. Yeah. Thank you. देखो व्हाट इज HTML बेसिकली देखो हमने बहुत कुछ सुना होता है HTML वगैरह हम YouTube पे बहुत ट्यूटोरियल देख लेते हैं बहुत से ऐसे टेक्निकल टर्म के थ्रू वो समझा रहे हैं और बहुत से कोर्सेस हैं लिंक्स हैं वेबसाइट्स हैं बहुत कुछ है लेकिन बेसिकली हमारा जो मेन मोटिव है वो है कि HTML को एज सिंपल कर देना जितना सिंपली हम समझ सकते हैं अगर मैं सिंपली इसे बताऊं व्हाट इज HTML अब मैं बात करता हूं इसके फुल फॉर्म की HTML स्टैंड फॉर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज as you all know hypertext markup language and what is hypertext first we need to learn that what is actually hypertext so hypertext is basically a hyperlink which we include in our web pages which you saw a link when we click a link it will redirect to our pages
This is basically hypertext, a link which we click in web pages. This is basically hypertext. And markup is just a simple English language which you use in our program to write a code. That's basically a markup. So this will all sum up together came as a hypertext markup languages. So what we need to here to learn that what is actually a function of hypertext markup language. Why we need that? So if I go further, just give me a second. So hypertext is a standard markup language for creating web pages. Okay. HTML basically describe the structure of a web pages. अब हम बात करते हैं, ये सब टेक्निकल टर्म हो गए. देखो अगर मैं जितना इसे सिंपली कर पाऊँ, अब हम सिंपल वे उसमें बात करते हैं. तो जैसे हमें घर बनाना है, अब उस घर में हमें पेंट भी होता है, ये सब होता है, जितने भी हम घर बनाने में लगता है, लेकिन उसका मेन काम क्या है? HTML आप ऐसे समझ सकते हो, जब आप बताते हो किसी को कि मुझे यहाँ ये गैलरी चाहिए, मुझे यहाँ टॉयलेट चाहिए, मुझे यहाँ वॉशरूम चाहिए, मुझे इस जगह पे रूम चाहिए, मुझे ये वाला रूम चाहिए, ऐसे रूम चाहिए, ऊपर ये चाहिए, नीचे ये चाहिए, जो ये स्ट्रक्चर होता है ना रूम का, दिस इज बेसिकली HTML ऑफ इन वेब पेजेस. When we are about to build a web pages, HTML work that same. You are going to you are going to tell the web browser to how to display the content. Yeah, okay. HTML is nothing, it just consists of a series of elements. Okay. Can you please next? Sure. Yeah. अब हमें सीखना है कि हम कहाँ लिख सकते हैं HTML को. देखो HTML हमें प्रोवाइड करता है कि हम कितने सिंपल वे में से लिख सकते हैं. इस वजह से इसे हम इतना सिंपल कर सकते हैं कि हम इसे नोटपैड में भी लिख सकते हैं. इवन नोटपैड में आप सिंपली लिख सकते हैं. इसमें यू जस्ट नीड अ वेब ब्राउजर टू रन दैट. You just need a web browser. Web browser you can have Chrome, you can have Firefox, Safari, whatever you are comfortable with that, and you can write any text editor you can use. Either it can be Notepad++, Atom, Sublime Text, Visual Studio Code. Now let me differentiate between all these editor. तो Notepad सबसे simple editor होता है जिसमें हम लिख सकते हैं. अब आप बात करो कि हम VS कोड में क्यों लिखना चाहेंगे या सबलाइन में क्यों लिखना चाहेंगे, क्योंकि ये चीज़ प्रोवाइड करता है, थोड़ा हमारे काम को आसान बना देता है. आसान कैसे बनाता है कि इट गिव अस एम्बिट यू कैन से, or it gives a shortcut, hints, shortcuts and names and hint. Ambit is give all that extra thing which will help us a lot in writing a code. When we are going to about writing a code, then it helps a lot. A text editor when and you can simply write in Notepad as well. So Shivam, next. So this is the basic step that you can follow to write an HTML code. First, you need to open a text editor. Whatever you want, it is all up to you. And then you just write a simple HTML markup. And then when you are going to save it, just keep this thing in mind that you have to save with an extension of .html extension. Okay. And the most important thing, most of the developer मानते हैं कि if we save the HTML5 or our HTML code with Hitesh Chaudhary. Hitesh Chaudhary, can you please stop your presenting? Hello. देखो मोस्ट ऑफ द डेवलपर मानते हैं कि हम जब अपना HTML का प्रोग्राम लिखते हैं तो हमें index.html से ही सेव करना चाहिए. एक फंडामेंटल रूल मान लिया गया है, वैसे कोई बात नहीं है, आप किसी भी उससे सेव कर सकते हो, लेकिन ये एक फंडामेंटल रूल बना दिया गया है कि आपको index.html से अगर आप सेव करो तो अच्छा है. बस extension.html होना चाहिए किसी भी अगर आपको रन कराना है तो. उसके बाद आप सिंपली अपने जो भी ब्राउजर आप यूज़ कर रहे हो उसमें आप रन करा लीजिए, वो रन हो जाएगा. But you just need a web browser and an extension of .html extension. Shivam, please proceed. So this is the structure of HTML document. This is a main building block, you can say. So if we go in further, so this is when we are going to start with doctype HTML. So what does it indicate? Indicate that the जो हम document लिखने जा रहे हैं ये HTML का डॉक्यूमेंट है, ये बताता है ब्राउजर को. ये लिखना बहुत अच्छा माना जाता है. मतलब मोस्ट ऑफ द जो हमारे डेवलपर्स होते हैं वो नहीं लिखते हैं, लेकिन स्क्रीन Anas, I think your screen is not visible. Okay. I think when that guy shared, when that guy shared, I think then it counts. Sure, it's visible. We just need to pin it. That's all. Okay, then fine. Okay, so we are here. So we are talking about the structure of HTML document. Okay.
So this is the main thing that you are gonna write with, starting with that you need to give आप ब्राउजर को बताते हो कि हम जो हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो HTML डॉक्यूमेंट है, ये पहला हमारी लाइन जस्ट इंडिकेट ये कर रही है, ठीक है। और ये याद रखना हमेशा HTML में जब भी हम कोई ये सब जो हम लिख रहे हैं ये टैग माने जाते हैं। अगर ये ओपन हो रहे हैं तो इन्हें एंड भी होना है। जैसे HTML ओपन है तो HTML का क्लोजिंग टैग भी है, हेड का ओपनिंग टैग है तो हेड का क्लोजिंग टैग भी है। ये मतलब स्टैंडर्ड रूल बना दिए गए हैं HTML में, एवरी ओपनिंग टैग हैज अ क्लोजिंग टैग। there are also some exception, मतलब not all the tags have closing tags, that's okay. So we are going to our next one is HTML tag. Okay, so okay, so this is the ये हमारे सारे टैग होते हैं, तो ये सब फंडामेंटल टैग्स होते हैं, ठीक है। इसे हमने दो कैटेगरी में कैटेगराइज कर दिया गया है, एक ब्लॉक कैटेगरी है, एक ब्लॉक एलिमेंट्स है और एक इनलाइन एलिमेंट है। अब व्हाट इज ब्लॉक एलिमेंट आप सब जानते हो। दो ब्लॉक एलिमेंट ऐसे हैं, मतलब जो भी हमारी आप कुछ भी लिखते हो उसके बाद आप जो दूसरा कंटेंट लिखोगे वो न्यू लाइन में आएगा, ये ब्लॉक एलिमेंट की वो है स्पेसिफाई, ठीक है। अगर आप जब ब्लॉक एलिमेंट का आप लिखते हो तो वो जितनी भी स्पेस जितनी भी विड्थ अवेलेबल है वो पूरी एक्वायर कर लेगा। उसके बाद आप जो भी लिखोगे वो नेक्स्ट न्यू लाइन से स्टार्ट करेगा, ये ब्लॉक एलिमेंट की। अगर हम बात करते हैं इनलाइन एलिमेंट के साथ ऐसा नहीं है। अगर आप इमेज टैग लगाते हो उसके बाद का कोई और आप देते हो तो वो सिर्फ इतनी स्पेस लेगा जितनी नेसेसरी है, ठीक है। वो पूरी स्पेस नहीं लेगा, पूरी विड्थ नहीं लेगा जितनी अवेलेबल है, वो जितनी नेसेसरी स्पेस है वो सब उतनी ही लेगा। ये इनलाइन एलिमेंट्स होते हैं। ये इनलाइन एलिमेंट इंक्लूड करता है आपका इमेज, आपका हाइपरलिंक, आपका स्पैन, ये सब जितनी भी टैग हैं ये सब इनलाइन में आते हैं। और जितनी भी ये पैराग्राफ, ये डिवीजन टैग है और ये हाइडिंग टैग है, ये सब ब्लॉक उसमें आते हैं। प्रोसीड। our next topic is attributes. What actually attribute is? It is just it gives just an additional information about the tag. Okay, when we use our image tag and we further src and alternate, just additional information about the image tag, you know, where you can also give the width of the image. You can also add as an attribute the height of the image. That's all we are going to about the tag attributes. Shivam. So what do you, Shivam? Yeah, thank you, Anas. So now I will be proceeding this presentation. So now we are going to see what our actual HTML code looks like. So here we have in front of us some HTML headings. Okay, so HTML headings comes in 6 types, ranging from H1 to H6, where H1 is the biggest heading and H6 is the smallest heading. You just simply need to enclose your text in between the H1 to H6 text. Next, we have HTML links. Okay, so if we have a web page, it is very normal to have a link in it, or speaking on a larger scale, a website. Nowadays, when you visit a website, you can see a lot of websites which redirect you to another web page. Okay, so how we do it? We simply include a link behind the text. What we do, we take anchor tag, then we write href. Href is the attribute of anchor tag, where you simply need to include the link you want to redirect your user between the double inverted commas. Okay, you can see the output of the HTML code on the right hand side. Proceeding further, we have HTML typography. So what typography means is that it is the way we represent our text in an HTML document, or we should say a web page or website. So we have different types of way in which we can represent our text. Some are very common, like bold, italics, subscript, superscript. Some may be new to us, like strong, big, emphasized. You can see the output on the right hand side. Next, we have an HTML form. Okay, so an HTML form is the most simple and basic web application that we can create by
just by the use of HTML. So what do we need to do to make an HTML form? Here we have in front of us a simple HTML form. You need to use a form tag and enclose all your information within it. Okay, what we can write the input field and create the buttons outside of HTML form, but the form tag has a special function. What it does, it recognizes, or I should say, it identifies the submit button in the form, and when the user, after entering the information, submits his information by clicking on the submit button. Okay, so the form reloads the web page by saving the information and sending it to the server and presenting an empty form again to the new user. So what we do, we write a label tag. We classify the information which we want to take from the user, and input tag with the attribute of text to store the information of our user, and a button tag at the end to submit the information. Next, we have HTML list. Okay, so what are lists? List is simply a way in which we can order our information in HTML. It can be of two types, unordered and ordered. You can see the syntax on the left hand side and this output on the right hand side. We use unordered list tag, that is UL, to show the unordered list. The unordered list will appear with bullets in front of them, and the ordered list will be numbered. It can be either 1, 2, 3. It can be either alphabets like ABC. It depends on our choice. Okay. Now, very interesting and important thing for HTML is layouts. When you visit different websites, you see how the data is arranged on that web page. If you, for example, let's take Facebook. Okay. In this first image, you can see a profile page can be aligned in this layout. You have a user's identification photo on the left hand side, some information in the middle, and some notifications on the right hand side. So it can vary from one website to another. Like Facebook has this kind of setup. So, and if you move on to some e-commerce website like Amazon or Facebook, it will have this kind of setup, which you can see just under the profile layout. So it depends on the developer which kind of layout will he use, or which kind of layout will suit the appearance of the website. Moving further, we have two kinds of websites: static websites and dynamic websites. So what does static websites do and what does dynamic websites do? How they differ from each other? Well, that is simple. Actually, static, as the name suggests, are the websites that do not change their content, or I should say they have a fixed content which is displayed to each and every user, regardless of what actions the user takes. Just like we saw before in HTML form. The content of the static website do not change and can be hard-coded easily by the developer. Next, we have dynamic website. Okay, so all those websites you see on the internet nowadays are dynamic. What does dynamic mean? It means that it is changing. It is not fixed. It changes its content according to the user's action. For example, the page may change with time of day, the user that accesses the web page, or the type of user interaction. Now, let's take an example. Let's take an example of Facebook. Okay, now you are making a post. So after you make the post, your page reloads and updates. Okay, so you are able to see your latest post that you made. This is an example of dynamic web page.
Now, that was all that we could cover for knowing the basics of the HTML. So, how can we be a good developer, a good web developer using this information as the basics? So let me introduce a situation in front of you. Let's say we have a number of painters in front of us, and I provide them a color palette. So can you tell me, will each one of the painters will be able to develop a masterpiece? Well, that is simple because it depends on the developer. The basics are same provided to each and every developer, but there is a difference in the thinking and approach of the developer. There are different developers who made a website like Flipkart and Amazon. Okay, they have different functions, they have different color schemes, but what they used is the basic information that we have provided just now. It all depends on the use case of the text and the functions that you need to provide to the user. So this was all for this crash course. Thank you for tuning in this presentation. Thank you. I think Shivam just give a summary of whole PPT. I think it won't be much clear because we explained page by page. Okay, just give a quick revision of all the PPT by sliding and explaining a little bit. Okay, then it will be clear that what much we explained. Rohan, I think you should. Rohan. Excuse me, sir. Just 1 minute. Give me 1 minute. I think I need to remove Rohan. Thank you. Just ignore. Because Sir, actually, you can remove those who are not abiding by the rules because we have already told it's them. Okay. Yeah. Sir, can you send a PDF of this? Diksha, we will upload a complete video of this session and also we will provide you this PPT. और हम इसके साथ साथ आपको जितने भी पॉसिबल प्लेस हैं जहाँ से आप HTML पढ़ सकते हैं, ठीक है, वो भी आपको हम जल्दी प्रोवाइड कर देंगे 1-2 दिन में, ठीक है. तो उस टेंशन नहीं लेने का. आपको वीडियो ये मिल जाएगी और जितने सोर्स जहाँ से भी आप HTML पढ़े हैं या पढ़ सकते हैं वो सब आपको. I think Rohan is once again. I think he is doing intentionally. Okay, fine, Rohan. Sir, is that only for HTML? Yeah, you are providing some more courses, crash course. Just give me a minute. Let me remove all these nonsense people. I don't know why they are doing this. If they are not interested, they should leave. Why they are disturbing others? Okay, Diksha, मैं बताता हूँ. बेसिकली ये आज HTML था, एक सिंपल सा इंट्रो की HTML. जिसने अब तक स्टार्ट नहीं किया है, ठीक है, वो अब स्टार्ट कर ले, ठीक है. अभी कोई लेट नहीं है. आप फर्स्ट ईयर में या मोस्टली सेकेंड ईयर में होंगे, अभी कोई लेट नहीं है. आप अब से HTML स्टार्ट कर लीजिए जिन्होंने नहीं करा है, और जो ऑलरेडी कर चुके हैं उनके लिए ये था एक समअप था, ठीक है. तो अब HTML आप कहाँ से पढ़ सकते हैं? लाइक अगर आपको थोड़ा भी आइडिया लग गया होगा कि HTML कैसे काम करता है, तो आप कहाँ से पढ़ेंगे HTML, वो आपको हम प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है. लाइक यूट्यूब ट्यूटोरियल्स या डॉक्यूमेंटेशन, जो भी बेटर होगा आपको हम कंटेंट प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है. आप वहाँ से जाके पढ़ सकते हैं, शुरू कर सकते हैं. HTML इतना बड़ा कोई चैप्टर या सब्जेक्ट नहीं है. आप इसे अच्छे से पढ़े तो हफ्ते 10 दिन में ख़त्म कर सकते हैं, ठीक है. और दीक्षा के डाउट पे आते हैं कि ये सिर्फ HTML नहीं रहेगा. अभी तक क्या था, मतलब लाइक कैसे हम वर्क कर रहे थे, हमने कोर्सेज प्रोवाइड करे आपको HTML के, उडमी के कोर्सेज या जहाँ से भी हमें कंटेंट मिले. ये एक समअप था. अब हम CSS पे प्रोसीड करेंगे, ठीक है. अब जो कोर्सेज हम आपको प्रोवाइड करेंगे
वो CSS के होंगे, ठीक है। और सेम इसी तरह हफ्ते या कल 1 महीने बाद, आई थिंक वी शुड गिव टाइम टू CSS, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो 1 महीने बाद हम फिर एक सेशन रखेंगे CSS का, सेम चीज़ हम वहाँ भी डिस्कस करेंगे। CSS के बारे में एक कंप्लीट क्रैश कोर्स होगा, ठीक है। वहाँ पे हम डिस्कस करेंगे, देन वी प्रोसीड फॉर जावास्क्रिप्ट। तो इस तरह हम प्रोसीड करेंगे। और अभी एक डाउट सेशन रख लेते हैं हम। मीनवाइल शिवम, तुम PPT एक बार फिर से रिवाइंड कर दो सबको, ठीक है, ताकि क्लियर हो जाए। और कोई डाउट है तो आप अभी हम डाउट सेशन लास्ट में 10 मिनट का रखेंगे, आप जो भी डाउट हो आप पूछ सकते हैं। और Sir, एक और चीज़ रिक्वेस्ट है। एक्सक्यूज मी सर, सर sir, आप ये will जो you notify? रिसोर्सेज, एक सेकेंड, आस्क वन बाय वन। प्लीज आस्क वन बाय वन। ओके, या हरगुन, यस सर। सर आप जो रिसोर्सेज देंगे वो आप टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करेंगे? लाइक हरगुन, आप इंडियन समिट से अभी तक जुड़े नहीं हैं क्या? लाइक आप No. नए स्टूडेंट हैं? यस सर, फर्स्ट या टाइम। ओके 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 फाइन। हरगुन, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ इंडियन समिट कैसे काम करता है। हम सबका व्हाट्सएप ग्रुप है, ठीक है। आपको वहाँ पे 24/7 जब भी कोई आपको डाउट होता है आप पूछ सकते हैं, ठीक है। वो ऑलरेडी है, चल रहा है। हम लोग काफ़ी दिन से, जो मोस्ट स्टूडेंट है वो वहीं से हैं। बाकी हम लोग का टेलीग्राम चैनल भी है, वहाँ भी हम प्रोवाइड कर देंगे, ऐसी कोई बात नहीं। बाकी मैं लिंक, शिवम कैन यू हियर मी? Shivam, just Yes, share the Karan. Yes. just share the WhatsApp group link our in the comment box। जो नए बच्चे हैं वो जुड़ जाएं, ठीक है। I have shared the हरगुन को website. I have shared the share the website in the WhatsApp chat group link। box. No, Okay. share the WhatsApp group link Okay, directly I will share do them। so. Okay। I want to जो know नए हैं, if yeah, just one by May one I I am speak? coming to everyone। Yeah, yes, just Diksha, please continue. Sir, okay, are you Diksha, gonna notify all this in Telegram? नॉट इन टेलीग्राम, बट मोस्टली चीज़ें हम टेलीग्राम पे भी डालते हैं दीक्षा। और हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है सबका, लाइक हर डोमेन का, वेब डोमेन, ऐप डोमेन, ML, साइबर सिक्योरिटी, सबका डोमेन है अलग अलग। तो उसमें मेंटर्स हैं। Sir, are you providing the crash course for cybersecurity also? वो चीज़ें टेलीग्राम पे भी हम कंटेंट अपलोड करेंगे। टेलीग्राम पे भी अपलोड होता है, इंस्टाग्राम पे भी अपलोड होता है, हर जगह हम कंटेंट अपलोड करते हैं। और जल्दी हम अपनी वेबसाइट पे भी सारी चीज़ें अवेलेबल कर देंगे आपके लिए, ठीक है। तो जस्ट अभी के लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन हो सकते हैं, क्योंकि अभी हम डायरेक्ट वहाँ कंटेंट प्रोवाइड करते हैं। शिवम भी लिंक शेयर कर देगा आपको कमेंट बॉक्स में, आप देख लेंगे। Okay, Shivam, sir. now yeah, okay. Shivam, now you can proceed with PPT। Okay, so Just give them, is PPT visible? yeah, it's या visible। श्योर। Okay, okay. तो एक बार मैं आपको हिंदी में इसका पूरा सम अप बता देता हूँ, ठीक है। तो HTML क्या है? HTML एक हमारी हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, ठीक है, आप नोट कर लीजिए। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, बस एक लैंग्वेज है जो हमारा कंटेंट है, टेक्स्ट है, उसको एक वेब पेज पे डिस्प्ले कर सकती है, ठीक है। ये लैंग्वेज ऐसी है जो हमारा वेब ब्राउजर अंडरस्टैंड करता है, रेदर देन आवर कंपाइलर। अगर आप इसे कंपाइलर में लिखोगे तो आपका कंपाइलर इसको नहीं समझेगा, बल्कि आपका वेब ब्राउजर इसको समझेगा, ठीक है। तो हम जो HTML का लेटेस्ट वर्जन आज के टाइम पे यूज कर रहे हैं वो HTML5 है। हालांकि वर्जन का कोई अंतर नहीं पड़ता है जो आप डॉक्यूमेंट बनाओगे, बट स्टिल इट इज बेटर टू नो ऑन विच वर्जन यू आर वर्किंग। हमने HTML डॉक्यूमेंट को क्रिएट करने के रिक्वायरमेंट्स के बारे में पढ़ा। हमें व्यू करने के लिए एक वेब ब्राउजर की जरूरत है, हमारी चॉइस का कोई भी कुछ भी हो सकता है, और एक टेक्स्ट एडिटर। आप नोटपैड यूज कर सकते हो, नोटपैड प्लस यूज कर सकते हो, इट कैन बी एनीथिंग। So we saw how we create an HTML file. We need a text editor. Just simply add your HTML code to it. Save it with an extension of HTML.html. As Anas explained, we have a fundamental of using index.html as our initial file, as the name of our initial file.
सो जब आप कोई एक बड़ी वेबसाइट बनाते हो तो उसमें मल्टीपल वेब पेजेस होते हैं, ठीक है। तो आप जो अपना होम पेज होता है उसको आप हमेशा index.html के नाम से ही सेव करते हो। ये जनरल प्रैक्टिस है जो आज डेवलपर्स यूज करते हैं। नेक्स्ट वी हैव द स्ट्रक्चर ऑफ HTML डॉक्यूमेंट। जो हमारा HTML डॉक्यूमेंट होता है वो इन 6 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। फर्स्ट होता है हमारा डॉक टाइप। डॉक टाइप क्या करता है, हमें बताता है कि जो हमारा डॉक्यूमेंट है उसका टाइप क्या है, वो HTML है, CSS है, जावास्क्रिप्ट है, वो है क्या। तो ये हमारा यहाँ पे HTML है। नेक्स्ट इसमें हम देख सकते हैं कई सारे टैग्स इंक्लूडेड हैं। जो भी टैग ओपन हो रहा है वो क्लोज हो रहा है। ये टैग्स जरूरी नहीं है कि जो ओपन हो वो क्लोज हो रहा हो, सिर्फ यही एक you can understand this is not the only criteria for it to be an HTML document. उसको एक पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप भी फॉलो करना जरूरी है। जो टैग सबसे पहले ओपन हो रहा है वो सबसे लास्ट में क्लोज हो रहा है। आप क्रोनोलॉजिकली समझिए। Next we have the types of tags which are included in the body of the HTML web page. Okay, we have two types of tags, blockline and inline. So blockline tags क्या करते हैं, वो आपकी वेब पेज की एक पूरी विड्थ को घेर लेते हैं। आप जो भी उसके बाद ऐड करोगे वो हमेशा न्यू लाइन से आएगा। अगर किसी ने एक छोटा सा कोई मतलब छोटा सा वेब पेज बनाने का ट्राई किया होगा और उसमें कुछ इमेजेस या टेक्स्ट इंक्लूड करने की कोशिश की होगी, तो आपने देखा होगा कि जैसे आपने इमेज इंसर्ट करी और उसके बाद एक पैराग्राफ लिखा तो वो उसके बाद नहीं आया, उसकी नेक्स्ट लाइन से चालू हुआ। जस्ट उसके एडजेसेंट नहीं, नेक्स्ट लाइन से चालू हुआ। बिकॉज व्हाई इट हैपेंड बिकॉज इमेज इज एन इनलाइन टैग व्हाइल द पैराग्राफ इज अ ब्लॉक टैग। नेक्स्ट वी हैव टैग एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स क्या है? एट्रीब्यूट्स एक एडिशनल कैरेक्टरिस्टिक है किसी भी टैग का जो हम उसे प्रोवाइड करते हैं। आप एक कंसीडर करिए पर्सन है, ठीक है। एक पर्सन एक टैग के आप उसे इक्विवेलेंट मानिए, तो उस पर्सन के जो स्किल्स हैं वो एक टैग के एट्रीब्यूट के इक्विवेलेंट है। एक वो पर्सन है जिसको अगर HTML आता है तो उसके एट्रीब्यूट हो गए, उसकी एक स्पेशलिटी हो गई। जैसे हम इस सिंटेक्स में देख सकते हैं कि एक हमारे पास इमेज टैग है जिसमें सोर्स में हम क्या कर रहे हैं, एक सोर्स लगा रहे हैं उस इमेज का। फॉर्मेट हमारा कुछ भी हो सकता है, .jpg, .png, यूजर की चॉइस पर डिपेंड करता है। ALT क्या है हमारा? ALT यहाँ पे हमारा अल्टरनेट टेक्स्ट है। कभी कभी आप देखते हो जैसे आपने कोई वेबसाइट विजिट करी और हुआ क्या कि अब आपका नेट डाउन हो गया, तो होता क्या है कि जो कंपोनेंट्स रेंडर हुए उस वेब पेज के, जैसे अगर इमेजेस होंगी तो ब्रेक हो गई होंगी, आपको नहीं दिख रहा होगा, एक छोटा सा आपको कुछ क्रॉस बनता हुआ नजर आ रहा होगा। जब आप उस पर होवर करोगे तो आप देखते हो कि कुछ उसका नेम कर्सर के नीचे शो होता है, वो ये अल्टरनेट टेक्स्ट होता है। अब हमारे पास कुछ HTML हेडिंग्स हैं। HTML हेडिंग्स हमारी 6 टाइप की होती हैं। बिगेस्ट इज द H1 हेडिंग while the smallest is H6 heading. Okay, all of these are included in the body tag. आपको जो भी कंटेंट है, आपका सारा कंटेंट बॉडी टैग के अंदर ही इंक्लूडेड होना चाहिए। नेक्स्ट वी हैव HTML लिंक्स। जो हमारी लिंक्स होती हैं वो हम एंकर टैग के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं या फिर एक लिंक टैग होता है, लिंक टैग के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। Both have the attribute of href. So href, what does href do? It takes the link of some other HTML web page of some other website as a string. Simply बस आपको डबल इन्वर्टेड कॉमास में उसको इंक्लूड कर देना है। जो आपका टेक्स्ट एडिटर है वो उसको आइडेंटिफाई कर लेगा एज अ लिंक। आप इसे किसी भी टेक्स्ट के पीछे इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे हमने इस एग्जांपल में इंक्लूड किया हुआ है, दिस इज अ लिंक। तो इसमें हम इसके पीछे href लगा के इंजीनियर सबमिट की वेबसाइट को इंक्लूड कर रहे हैं। आप देख सकते हो कि
राइट हैंड साइड पे जो लिंक है वो दिस इज अ लिंक, ये टेक्स्ट अंडरलाइंड है, ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि ये एक लिंक है, this is an active link. If you hover on it, your cursor will change. Okay, so next we have typography. टाइपोग्राफी क्या है? सिंपल हमारा लिखने का तरीका है, मोटी मोटी बात हमारी ये है कि एक लिखने का तरीका है जो हम HTML डॉक्यूमेंट में फॉलो करते हैं, ठीक है। हमने इसमें से कुछ तो पहले ही हम जानते हैं, जैसे अगर आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज किया होगा या फिर ऐसे की सॉफ्टवेयर यूज करे होंगे तो उसमें बोल्ड, इटैलिक्स, ठीक है, स्ट्राइक, इस टाइप के आपने टाइपोग्राफी देखी होगी। कुछ हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट होती है, थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग, कुछ नहीं बस बोल्ड की तरह हमारे सिमिलर दिखती है, बिग, थोड़ा सा टेक्स्ट उसके यूजुअल जो उसका फॉन्ट साइज होता है उससे बड़ा दिखता है, सिमिलरली स्मॉल में थोड़ा सा छोटा दिखता है। मार्क्ड में क्या होता है कि कोई भी आपका टेक्स्ट जो मार्क टैग के अंदर इंक्लूडेड है वो हाईलाइट हो जाएगा। डिलीट टैग क्या करता है, उस जो पर्टिकुलर टेक्स्ट जो उसके बीच में इंक्लूड है उसको स्ट्राइक ऑफ कर देगा, जैसे आप इस आउटपुट में देख सकते हो, इट इज स्ट्राइक्ड विद अ सिंगल लाइन। नेक्स्ट वी हैव एन HTML फॉर्म। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, फॉर्म क्या करता है, फॉर्म के पास एक अपना एक स्पेशल फीचर होता है। जब आप फॉर्म टैग का यूज करके उसके अंदर एक रिस्पॉन्स सबमिट करवाते हो यूजर से, तो क्या करते हो, उस वेब पेज को रीलोड करता है। वाइल रीलोडिंग बैकएंड में क्या होता है, इसके पीछे क्या हो रहा है, जो भी इंफॉर्मेशन यूजर ने एंटर करी होती है वो सर्वर के पास स्टोर हो जाती है, जो हमारा डेटाबेस है उसमें चली जाती है। उस पेज को रीलोड करके आपको एक दोबारा से नया एम्प्टी फॉर्म दिखा देता है। हम इसमें किन किन टैग्स का यूज करते हैं, हम इसमें लेबल टैग का यूज करते हैं टू डिस्प्ले द इंफॉर्मेशन व्हिच वी वांट फ्रॉम द यूजर। एक इनपुट टैग का यूज करते हैं। इनपुट क्या करता है, हमारा एक टेक्स्ट फील्ड जनरेट कर देता है। इनपुट टैग में हम प्लेस होल्डर एक एट्रीब्यूट होता है जिसको यूज करके एक टेक्स्ट दे सकते हैं, उसकी ओपेसिटी काफी लो होती है, वो हमें पार्शियली विजिबल होता है। जैसे आप किसी भी लॉगिन फॉर्म में देख सकते हो, जैसे आप फेसबुक ओपन करो तो उसमें लिखा आता है यूजर नेम एंड पासवर्ड, सेम कंसेप्ट। नेक्स्ट वी हैव HTML लिस्ट। HTML लिस्ट हमारे दो टाइप की होती है, एक ऑर्डर्ड होती है, एक अनऑर्डर्ड होती है। अनऑर्डर्ड आप देख सकते हो इसमें, इस HTML सिंटेक्स में, कि सिंपली आपको UL के अंदर, UL टैग के अंदर आपको अपने इंफॉर्मेशन इंक्लूड करनी होगी। जो भी इंफॉर्मेशन आपकी होगी उसको आपको LI टैग के बीच में इंक्लूड करना होगा, एंड यू कैन गेट द रिजल्ट जस्ट लाइक हियर इन द राइट हैंड साइड। सेकंड टाइप ऑफ लिस्ट आर ऑर्डर्ड लिस्ट। ऑर्डर्ड लिस्ट क्या होता है, उसमें जो भी आप इंफॉर्मेशन स्टोर करते हो ना वो एक ऑर्डर में डिस्प्ले होती है। द ऑर्डर कैन बी इन द फॉर्म ऑफ simple integers, alphabets like ABC or Roman numbers. It depends on your choice. By default, you view an unordered list, a bullet, and an ordered list integers. Next, we have layouts of a website. So the website you visit nowadays has different kinds of layout. As you can see on the left hand side, top left corner, we have a profile. In this way, we can display the content of a user's profile, like you see in your account on Facebook or some other website. On the right corner, we have an article list. So if some of you visit websites like India Today or Hindustan Times, you can see the images are displayed on the left and right hand side, and the article, the information is included in the center of the web page. On the top, you get a navigation bar to navigate to different pages. It depends on the choice of the developer in which way he wants to display the information. वो किस तरीके से जो information है उसको display करवाना चाहता है। Next हमारे पास कितने टाइप की वेबसाइट्स। हमारे पास दो टाइप की वेबसाइट्स हैं, स्टैटिक और डायनामिक। स्टैटिक वेबसाइट से क्या होता है, बहुत सिंपल वेबसाइट्स होती हैं, आप इजीली कोई भी उसको क्रिएट कर सकता है। बस आपको नॉलेज होनी चाहिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेक्स्ट की, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस की जो HTML में आप यूज करते हो, जिससे आप अपना कंटेंट एफिशिएंटली डिस्प्ले कर सकते हो किसी भी विजिटर को। वो चेंज नहीं होता, वो
फॉर एग्जांपल आप उसका यूजर उसका कोई साइज नहीं चेंज कर सकता, कलर नहीं चेंज कर सकता। जैसे आप देखो कि आप आजकल वेबसाइट्स आपको डार्क मोड प्रोवाइड करती हैं, स्टैटिक वेबसाइट ऐसा नहीं होता है, वो सब डायनेमिक में आ जाता है। कोई भी वेबसाइट जो यूजर को रिस्पॉन्स दे रही हो वो डायनेमिक हो जाती है, कि कंटेंट चेंज हो रहा हो यूजर के अकॉर्डिंग। ओके, सम इंफॉर्मेशन जैसे डेट और टाइम चेंज होती जा रही हो सेकंड बाय सेकंड, तो ये सब हमारे डायनेमिक वेबसाइट्स में आते हैं। तो क्या यही सब इम्पोर्टेंट है हमारे पास HTML सीखने के लिए? जैसे मैंने डिस्कस करा, अगर हम एक सेट ले लें 10 पेंटर्स का, 10 डेवलपर्स ले लें और उनके पास भी सेम ही इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, तो वो जो वेब पेज बनाएंगे, वो जो वेबसाइट बनाएंगे, तो जरूरी नहीं है यार वो सेम हो। Why? Because it depends on the creativity and imagination of the developer. आप उसे किस तरीके से यूजर को अपना कंटेंट डिस्प्ले करवा सकते हो। So this was all for this explanation. Okay, if you have any doubt, you can ask. Okay. किसी को कोई डाउट है, कुछ क्वेरी है कि कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, HTML की या कोई दिक्कत आ रही है तो आप पूछ सकते हैं। शिवम, चैट बॉक्स देखते रहना, कोई डाउट पूछता है तो यू कैन अप्लाई। या समवन आस्किंग समथिंग। यस सर। सर जो आपने जो पहले स्लाइड दिखाया था उसमें लिखा था बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ HTML, तो उसमें सर मेटा टैग यूज किया था, तो सर उसमें एक बार बता दीजिए मेटा टैग। Okay. Shivam, open that slide. Okay. यस। देखो बेसिकली जो मेटा टैग होता है ना हमारा, वो डेटा से इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है। मतलब जो आपका जो डॉक्यूमेंट है उसका ऑथर कौन है, ठीक है। आपकी व्यू पोर्ट सेटिंग्स इसके अंदर आती हैं, आपकी पेज डिस्क्रिप्शन हम इसके अंदर लिखते हैं, आपके कीवर्ड्स हम इसके अंदर लिखते हैं। ये टिपिकली यूज टू स्पेसिफाई कैरेक्टर सेट, इज दैट ऑल। मेटा डेटा इज ऑल कंटेन अ कैरेक्टर सेट। डिड यू गेट दैट? डेटा की इंफॉर्मेशन मतलब डॉक्यूमेंट का ऑथर कौन है, पेज की डिस्क्रिप्शन क्या है, व्यू पोर्ट सेटिंग्स, मशीन पर्सिबल, सब डेटा मेटा डेटा टैग में इंक्लूड होता है। सर इसी एग्जांपल में जैसे कैर सेट इक्वल्स टू UTF-8 है, इसका मतलब क्या है? वही तो ये कैरेक्टर सेट है। मतलब आप जब हायर लेवल प्रोजेक्ट पे काम करोगे, मीन्स जब आप आगे चल के और इसमें थोड़ा एडवांस होगे, जब आप रिएक्ट पे आते हो तो रिएक्ट के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें आती हैं। हरगुन, मेटा टैग बेसिकली ऐसे देखो, अगर गूगल तुम्हें देखता है तो कुछ चीजें है ना वो तुम्हारे देखेगा वेबसाइट में, तुम जो वेबसाइट की लेआउट बनाए हो उसमें देखेगा ना, तो कुछ चीजें होती हैं जो वो बाहर दिखती नहीं है बट वो अंदर उसकी जरूरत होती है, वो ऐसा समझो वो मेटा में हम डाल सकते हैं, ठीक है। Yeah, गूगल exactly. उसे सर्च, हाँ गूगल कुछ सर्च कर रहा है तुम्हारी वेबसाइट में, कुछ भी तुम्हें डालना है जो बाहर दिख नहीं रही हो लेकिन अंदर उसकी जरूरत है, ऐसा समझ लो। ऑथेंटिकेशन के लिए कुछ ऐसा समझ लो, समझ रहे हो, कुछ ऐसी चीजें वो वहाँ पे डालते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल दे देता हूँ, लाइक जैसे कि वेबसाइट पे तुम्हें एडवर्टाइजमेंट लगाना है, ठीक है। तो अब तुम गूगल एडसेंस एक चीज होता है, वहाँ पे अप्रूवल डालोगे कि हमें अपनी वेबसाइट पे ऐड दिखाना है, तो गूगल तो पहले तुम्हारी वेबसाइट चेक करेगा ना, तो वो सब जो लिंक डालोगे कुछ चीजें वो सब मेटा टैग में हम डाल सकते हैं, ऐसी चीजें हम डालते हैं मेटा में। बेसिकली दिखती नहीं है वो चीजें। स्टार्टअप इतना समझ लो, अभी इतना एनफ है। Sir, is that Sir, I guess it is basically used in search engine optimization as well. Metadata. मेटाडेटा का कई सारे यूजेस हैं। एक यूज का ये भी है कि जैसे जो भी आप कंटेंट डिस्प्ले कर रहे हो वो जरूरी नहीं है जिस लैंग्वेज में आपने बनाया जो यूजर है उसी लैंग्वेज में उसको व्यू करे। सो मेटा टैग हैज अ लॉट ऑफ यूजेस। Sir, is that compulsory? सर मतलब एक मिनट ऐसा ही, जैसे कोई YouTube चैनल मैंने क्रिएट किया तो एक YouTube वीडियो में डाल रहा हूँ,
तो उसमें जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें मैं हैशटैग यूज़ कर रहा हूँ, ये सब यूज़ कर रहा हूँ, जिससे कि जो सर्च इंजन मतलब जैसे मैं कोई चीज़ सर्च करता हूँ तो उसी से ही मेरी वीडियो सबसे ज़्यादा ऑप्टिमाइज होकर अपर मतलब ऊपर ऊपर आएगी। आई थिंक ऐसे ही यूज़ है। हाँ, जैसे मैंने आपको बताया ना, जैसे जो भी उसका यूज ये है कि जो आप लैंग्वेज जिसमें आप यूज कर रहे हो, जिसमें आप उसको डेवलप कर रहे हो, आपका यूजर जो है मैं उसको जरूरी नहीं है कि व्यू कर रहा हो। जो भी के सिंबल्स हैं, जो भी आप मतलब यूज जो भी टेक्स्ट यूज कर रहे हो, वो क्या होगा, चेंज होगा यूजर के अकॉर्डिंग। जैसे हम किसी ने बताया कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में यूज होता है, यस उसका ये भी यूज है उसका। वो आपकी आइडेंटिफाई करेगा एनकोडिंग को जो उसमें यूज हो रही है, उसको थोड़ा और यूजर फ्रेंडली बनाएगा। ओके सर। Excuse me, sir. यस Sir, is that compulsion to use meta tag? Hello. यस कंपैरिजन की बात करें तो अगर आप कोई स्मॉल एप्लीकेशन बना रहे हो तो जरूरी नहीं है, बट आप अगर कोई लार्ज स्केल एप्लीकेशन बना रहे हो तो उसमें हाँ जरूरत पड़ेगी। जैसे आप फॉर एग्जांपल आप विकिपीडिया यूज करो, ठीक है, तो विकिपीडिया पे क्या होता है, यस थैंक यू फॉर म्यूटिंग। यस, तो विकिपीडिया पे क्या होता है यार, उसमें साइड में आपको लैंग्वेज चेंज करने का एक स्लाइड डाउन मेन्यू दिखता है, स्लाइड डाउन ऑप्शन दिखता है। तो जैसे आप उस पर क्लिक करते हो तो जो पूरा आर्टिकल है उसकी लैंग्वेज चेंज हो जाती है। वो कैसे होता है, वो उसी के थ्रू हो रहा होता है, मेटा टैग के थ्रू। Okay, sir. ये बस एक कुछ एडिशनल फीचर्स ऐड कर देता है आपके वेब पेज पे। साइमन पूछ रहे हैं कि HTML शिवम आई थिंक देयर इज सम नॉइज फ्रॉम साइड। ओके, साइमन कुछ पूछ रहे हैं कमेंट बॉक्स में कि HTML बेसिकली किस पेज होता है। लाइक इन्होंने बोला है कि पाइथन जैसे डाटा साइंस के लिए देखिए, आई थिंक योर नेम इज साइमन। ओके साइमन, HTML CSS जावास्क्रिप्ट सब ये फ्रंट एंड लैंग्वेज है और ये वेब डेवलपमेंट के फ्रंट एंड को बनाने के लिए यूज होती है, ऐसे समझो। और जो उसमें HTML है, तुमने पूछा HTML क्या काम आता है, तो HTML एक ऐसा बेसिक है, बिना इसके आप नहीं बना सकते उसे, ठीक है। एक बेसिक टैग है। अब उसको लाइक तुमने जैसे कि अभी शिवम ने तुम्हें फॉर्म शेयर किया होगा, एक सिंपल सा फॉर्म था, उसमें लिखा था नेम, फर्स्ट नेम, सेकंड नेम, लास्ट नेम, ऐसे चीजें। तो बट अब वैसे तो एक्चुअल में तुम जब फॉर्म फिल करते हो गूगल का या किसी वेबसाइट पे, तो ऐसे तो नहीं आती होंगी ना, देखे हुए बहुत कलर्ड रहती होंगी, इसमें थोड़ा सुंदर रहता होगा। तो अब HTML से थोड़ी चीज़ें अच्छी बनाने के लिए फिर हम CSS यूज करते हैं और उसमें चीज़ें थोड़ी स्मूथ हो जाती हैं और ज़्यादा चीज़ें मिल जाती हैं चीज़ों को सुंदर करने के लिए। सेम चीज़ फिर जावास्क्रिप्ट में हो तो ऐसे होता है, ठीक है। HTML उसका सबसे बेसिक है। आई थिंक थोड़ा थोड़ा तुम्हें क्लियर हो गया होगा। Okay, anyone have any other doubt? Yes, sir. Sir, meta tag is only used for language. Here you had more examples to elaborate it. What you just said? Yeah, Deeksha, don't just get fixated on meta tag. Okay, there are uses. Yes, there are many uses to it. Okay, there are different kinds of uses to it, but it depends on our usability, what type of application we are developing. Okay, sir. Okay, I think it was a good session. बाकी व्हाट्सएप ग्रुप लिंक में शेयर कर दिया गया है कमेंट बॉक्स में, जिसको ज्वाइन होगा ना होगा हो जाएगा। वेबसाइट अगर नहीं पता है तो engineershami.com, ठीक है। आप कभी भी, बाकी इंस्टाग्राम है, टेलीग्राम है, आप कहीं से भी हमसे ज्वाइन हो सकते हैं। हम हर जगह आपको कंटेंट अवेलेबल कराते हैं जितना पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। बाकी ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वेबिनार में। तब तक के लिए टेक केयर, सभी लोग ध्यान रखें अपना। Thank you, sir.